आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल है जिसमें राहुल गांधी एक मंच पर बैठे नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो जो है इस लाइन के साथ वायरल किया जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की उन सभी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार हैं जो उनसे पहले इतिहास में कांग्रेस की तरफ से की गई। दरअसल ये वीडियो जो है ये अमेरिका का बताया जा रहा है, जहाँ पर ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे थे और वहां पर मंच पर वो सवालों के जवाब दे रहे थे और एक सवाल जवाब का सेशन भी था जहां पर कुछ छात्रों से वो बात कर रहे थे, कुछ लोगों से बात कर रहे थे, जिसमें एक सिख स्टूडेंट ने उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक सिख स्टूडेंट ने उनसे पूछा, एक सिख व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भारत में लड़ाई इस बात पर है कि क्या सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, क्या सिख को कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या गुरुद्वारा जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपको पहले उनका वो हम सवाल सुना देते हैं जो उन्होंने राहुल गांधी से पूछा। You recently, in your last visit to the USA, you made a tweet speaking directly to Sikhs in India and abroad. And in that, you talk about what India under the BJP would look like, where you ask, will you be allowed to wear garas? Would you allowed to be wear turbans under the BJP? So you create a fear amongst the Sikhs about what the BJP would look like. But you talked about how politics should be fearless. There should be nothing to be afraid of, right? But we don't just want to wear garas. We don't just want to tie our turbans. We want freedom of expression, which under the Congress Party in the past has not been allowed. For example, the Anandpur Sahib resolution, which you're probably familiar with, talks about these Dalit rights, right? Rights of water. It talks about better working conditions, anti-monopoly. It mentions nothing of separatism, but it's labeled as a separatist document. This is something your party has done, and your party seems to lack the maturity to accept the mistakes it has made, such as Sajjan Kumar just now being tried. And there's many more Sajjan Kumars currently sitting in the Congress Party. KPS Gill is hailed as a hero, yet you tell us to fear what the BJP India would look like. But you've never really tried to reconcile brother, what's the with the question? Sikhs. Yeah, no. I think it's a minute now. What's your question? The point Yes, is, I will get to my question. So what's the question? You haven't tried to reconcile with the Sikhs. What attempts are you making? Because if you continue like this, BJP is also going to make its way. इस बातचीत में जो सिख शख्स हैं उन्होंने सज्जन कुमार का नाम भी लिया, जो कि 1984 में सिख दंगों के आरोपी थे। जो दंगे हुए उसमें सज्जन कुमार का नाम था, दोषी करार दिए गए, उनका नाम आया। जगदीश टाइटलर भी जो कांग्रेस के नेता थे उनका नाम भी आया था। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई और सज्जन कुमार अब भी बैठे हैं। फिर जब इस सवाल को पूछा गया राहुल गांधी से, तो इसके बाद राहुल गांधी ने जवाब दिया और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सिखों को किसी बात का डर है। मैंने जो बयान दिया था वो ये था कि क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ लोग अपने धर्म को लेकर असहज हों। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की गलतियों का सवाल है, उनमें से बहुत सी गलतियाँ तब हुई जब मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने इतिहास की हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। आपको सुना देते हैं राहुल गांधी ने क्या जवाब में कहा है। No, first of all, I don't think that really anything scares the Sikhs. That's the first point. The statement I made was that, look, do we want an India where people are uncomfortable to express their religion? As far as mistakes of the Congress Party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress Party has ever done wrong in its history. The question is, what are you doing to reconcile? I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. राहुल गांधी ने इसके बाद ये भी कहा कि जो भी घटना इतिहास में हुई, जिस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना जाता है, उसके बाद मैं खुद सिख कम्युनिटी के बहुत करीब पहुंचा हूं। मैं कई बार जो है स्वर्ण मंदिर गया, सिखों के बीच मुझे बहुत प्यार मिलता है। लेकिन इस वीडियो को जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो कई राजनीतिक उनके विरोधियों ने इसे शेयर करते हुए अपनी अपनी बातें लिखी। जैसे कि बीजेपी IT सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी की आलोचना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी होने लगी है। इस तरह के और भी कई चीज़ें आई, लेकिन ऐसा खुलकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अक्सर जब भी सिख दंगों की बात आती है तो वो इस सवाल से कई बार बचते हुए नजर आई है। लेकिन राहुल गांधी ने आज खुलकर, ये जो वीडियो शेयर हो रहा है अमेरिका का, इसमें राहुल गांधी ने खुलकर उस सिख शख्स को जवाब दिया है
और उस जवाब में उन्होंने वो तमाम बातें रखी हैं जिसे लोग उनसे सुनना चाहते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। बाकी जो भी नई जानकारी कांग्रेस का पक्ष या बीजेपी की तरफ से या किसी और पक्ष की तरफ से कोई बात इस वीडियो के संदर्भ में आती है तो हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। लेकिन ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर था, इसलिए हमने इसे आपको दिखाया है। शुक्रिया।